Good morning, everyone, and welcome back to PPS Theory Sessions. We are going through array examples, right? So we have seen 1D array, 2D array, multi-dimensional arrays, right? And we looked at multiple examples also, like 1D array examples. We have seen how to get values, print values, and all. 2D array example we have seen related to matrix examples like matrix addition, matrix multiplication, and all. Yeah, sorry. And and then we looked at multi-dimensional array, just 2, 3, or 3 dimension, 4 dimension, and we just understood that part. And after that, we started this example. Let's say again we want to start with one-dimensional array, and we want to take one scenario where we want to calculate a result, and that's what the example we were working on in a previous lecture. And starting from this place, we will scale this example from 1D to 2D and 2D to 3D also. So that's what I plan, and that will make you more understanding and aware when you require more dimensions. Okay. So let's again have a look at this example. So we were working on this one where, let's say, we want to calculate a result of one student. So for that, first of all, we require marks of subjects. And right now we have fixed that we are going to have 4 subjects. So we will require total marks of those 4 subjects. And when we add those marks, we'll have a total also. So that this will help us in calculating the percentage of a student, right? And then we go for the marks obtained. How many marks student has obtained for those 4 subjects. So we'll take those marks obtained also, and then we'll make some total. And with this total, we can also calculate the percentage, right? Now, if we think about data type or what data we are going to store here, then we say obviously marks obtained will be the float. Possibly student may obtain 50.5 or 54.5 marks and so on. So it is gonna be float, and therefore total obtained marks will also be float, and percentage is definitely going to be the float value, right? And by this understanding, we had gone for the program and we have taken everything as a float. Now look, marks of a subject may not be float value. It can be integer. So if you want to optimize your program a little bit, then you can have these two things as an integer, because it will never happen that a subject will have examination of let's say 100.5 marks. Either it will be 100 marks, 80 marks, 70 marks, 150 marks, or something. It is going to be integer. Obtained marks can be float. So this is a little bit of optimization. हम अपने प्रोग्राम को थोड़ा अच्छा बना सकते हैं इस तरह से, so that your entire program will have a less memory, क्योंकि इंटीजर को स्टोर करने के लिए कम मेमोरी चाहिए फ्लोट के मुकाबले, right? So that's how we can optimize a little bit. So this is what we have understood, and with this understanding part, we had gone for the program here. So this is the last program we have completed. Let's again go through this logic also. So as I told you, marks and total marks of a subject can be integer. So we can go for that integer part here. Let me change that. So subject marks can be integer, right? And subject total can also be integer. And if it is integer, let us assign it only 0. So this is a little bit of optimization. अगर आप ये करते हो तो अच्छा है, नहीं करोगे तो भी we had seen that this program was working yesterday perfectly, right? So let us again go through this changing part. हमने क्या किया, सब marks and सब total, ये दोनों को हमने integer कर दिया. Yeah, so that's correct, Viraj.
अगर हमने इन दोनों को इंटीजर किया है तो scanf और जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि अगर ये इंटीजर है तो क्या इफेक्ट आती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी टेक दिस मार्क्स वी नीड टू मेक इट परसेंटेज d. सो ये मैंने इंटीजर ले लिया. तो सब मार्क्स इज इंटीजर एरे एंड व्हाट वी एक्चुअली डू इज 4 सब्जेक्ट के जो मार्क्स थे वो हम सबसे पहले गेट कर रहे हैं. सो एट दिस प्लेस वी आर सिंपली गोइंग टू टेक दोज मार्क्स कि भाई सब्जेक्ट 1 के टोटल मार्क्स कितने हैं, सब्जेक्ट 2 के टोटल मार्क्स कितने हैं, सब्जेक्ट 3 एंड सब्जेक्ट 4. अब चारों सब्जेक्ट के जो टोटल मार्क्स आपको मिलते हैं उसको ऐड करते जाओ तो आपका फाइनल रिजल्ट टोटल जो है वो मिल जाएगा. And again this is 0 initialized and here we are using shorthand operator plus equals to. So it is something like subtotal equals to subtotal plus submarks of I. Okay, so it's something like a plus equals to b लिखा है तो a equals to a plus b, right? So ये हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन. हमारे जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके हमने टोटल मार्क्स ले लिए. Then we go and ask user to enter student marks. Student ने कितने ऑब्टेन किए. So again we run a loop because हमें 4 सब्जेक्ट के मार्क्स चाहिए and we'll say subject 1 obtain marks और यहाँ पे हमने वो मार्क्स ले लिया. नाउ स्टूडेंट जो मार्क्स ऑब्टेन करता है दैट कैन बी फ्लोट, सो लेट इट बी परसेंटेज एफ और हमने यहाँ पे फ्लोट वेरिएबल लिया हुआ है, राइट? So that's the student obtained marks and we make it total also. So that is also float 0.0 initialization. Okay. Well, Viraj is still asking symbol કેનો છે sub marks ની આગળ. This is what you are asking, Viraj? Is this what you are asking? Plus equals to? Scanf ma. Look, that is ampersand sign. That depends on font, which font I am using, but that is ampersand sign. Don't forget, scanf requires ampersand sign. Remember. Yeah. So I've assigned some different font, so it is displaying a little bit different, but it is ampersand sign. Okay. Yeah. So we have taken subject marks, then we have taken obtained marks, and then we have gone for percentage calculation. Now here, this total marks is float. So float into integer will be float, and float divide by integer, answer will be float, so we don't have any problem at this place. Percentage float में calculate हो जाएगा. And then we have printed everything here, right? So what we have gone for is we have printed the entire result. Let us quickly run this program once and see the output so that you'll be much clear where we need to make some changes. Okay, so this asks us for initially 4 subject total marks. So let's say 100 marks, 100 marks, 100 and 100. Let it be 100 all. आज के लिए हम 100, 100, 100, 100 पे जाएंगे. So all 4 subjects are having total 100 marks. And now it is asking us to enter the obtained marks. So I'll go for 80, 80. Okay, 80, 80, 80 and 80. So 4 subject में मैंने 80 marks obtain किए. Then this is the result. Okay, so this is how in a tabular form, not exactly the table but kind of a table format, we print those answers, and we have achieved that thing using this thing, right? Printf and formatting your printing data like /t and 3.2f and all, right? So this is my final result, and that's the example of creating a result for one student. And one student, that single student, has multiple subjects, so we had gone for one-dimensional array. Now this is what we have already completed in previous lecture, right? And after this we started to scale our application. एक स्टूडेंट नहीं, मान लो कि आपको 3 स्टूडेंट के लिए ये करना है, तो क्या करोगे? So let us go and try to understand that thing, that data structure again in this place.
Right. So what we were having is we were having obtained marks. So it is like marks OBT, total OBT, right? So we have marks obtained and total obtained, and from this we calculate percentage, right? Now for one student there were 4 subjects, so we have taken this as array, and these two were a simple variable. Now this is for one student. Now what if I want to have another student? So if I want to go for second student, again I will require another array of one dimension, another variable, and another variable. For student 3, again I'll require one more array to store marks, then one variable to store obtained marks, and one variable for percentage, right? So this is what we will require for student 1, student 2, and student 3. And as many students we have, we need to go for all these variables. So it's kind of marks obtained 1, total obtained 1, percentage 1. Then marks obtained 2, total obtained 2, percentage 2, and so on. So जैसे ही आप स्टूडेंट बढ़ाते जाओगे, आपके वेरिएबल्स भी बढ़ते जाएंगे. सो आप फिर से वही प्रॉब्लम में आ गए कि अगर मेरे पास 60 स्टूडेंट्स हैं तो मैं 60 वेरिएबल्स डिक्लेयर करूंगा. वेल अगेन दैट इज नॉट feasible. सो दैट्स द रीजन व्हाट वी डू इज, अगर ऑलरेडी वन डायमेंशनल एरे था marks obtained and I'm going to replicate that thing for the students, then actually I'm going to have this as a 2-dimensional array. So we will take this marks obtained as a 2-dimensional array, जिसके अंदर मैं 4 सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर करूंगा. So 4 columns. और कितने स्टूडेंट हैं? Those many rows. So I have 3 students, so I'll go for 3 rows. So this way it is going to be marks obtained, 3 rows and 4 columns. Now again at this place, total obtained, 1 element, and I'm going to replicate that single element multiple times. So this is going to be your 1-dimensional array, and it will have total number of elements equals to number of students. So this is going to be total obtained. कितने स्टूडेंट हैं? 3 स्टूडेंट हैं. So total obtained 3. And similarly, your percentage will also be the single dimensional array of size 3. Again मैं बता दूं, इसको आप vertical draw करो या horizontal draw करो, it is not going to make any change in your memory. Okay? So this is how you can think of कि अगर आपने एक से ज़्यादा स्टूडेंट कर लिए तो आपको एक डायमेंशन बढ़ाना पड़ेगा. सो 4 ऑलरेडी था, एक डायमेंशन हमने बढ़ा दिया, राइट? सिंगल टोटल ऑब्टेन तो ऑलरेडी था, हमने एक डायमेंशन बढ़ा दिया. एंड सिंगल परसेंटेज ऑलरेडी था, हमने एक डायमेंशन बढ़ा दिया. So this is how we have scaled this application to the second dimension. Now let us go and make these changes in our program, and then let's take all the values and print those answers or print the result on the table. So any doubt in this one right now? इसमें कोई भी doubt है? You always need to think of your data first. एक बार डेटा क्या है वो समझ लो ठीक से, तो आपको पता चलेगा कि वो डेटा आप किस तरह से स्टोर कर सकते हो. एंड देन यू कैन कम टू दिस डिसीजन कि मुझे वेरिएबल किस तरह से लेना होगा. फाइन.
Well, if no doubt, then that's great. Let's go and make those changes here. So what we will do now is we will go and scale this application. अभी तक हम जो एक स्टूडेंट के साथ कर रहे थे, हम वो क्या करेंगे, अब 3 स्टूडेंट के लिए करेंगे. So I'm going to increase one dimension. चारों स्टूडेंट के लिए सब्जेक्ट तो सेम रहेंगे, सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स भी सेम रहेंगे. So there won't be any change in this place. सब्जेक्ट मार्क्स में कोई चेंज नहीं आने वाला है. Just we are going to increase one dimension at this place. There will be 3 students, so there will be 3 total marks and there will be 3 percentages. अब परसेंटेज को तो इनिशियलाइज नहीं किया, टोटल ऑब्टेन को जब हम इनिशियलाइज करते हैं एंड इफ इट इज एन एरे, तो एरे इनिशियलाइजेशन कर्ली ब्रैकेट से होता है. फाइन. एंड नाउ व्हाट आई एम डूइंग हियर इज मैंने एक ही एलिमेंट, 3 में से एक एलिमेंट इनिशियलाइज किया, बाकी के एलिमेंट ऑटोमेटिकली 0 हो जाएंगे. फाइन. सो ऑल 3 एलिमेंट्स विल बी 0. Now we go and take the basic data of subjects, no change there. उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे and we will say please enter marks for 4 subjects obtained by students. ठीक है. और यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा फॉर लूप चाहिए होगी, फॉर, और ये पूरा जो है फॉर लूप वाला पार्ट वो इसके अंदर चला जाएगा. ठीक है. Why? Because we have increased one dimension. तो outer loop number of students के लिए रहेगी. So let us go for it. We'll say for I equals to 0. Outer loop हम I रखेंगे. I equals to 0. I less than कितने student हैं? 3 students है, तो I less than 3. I plus plus. और इसके अंदर मैं एक printf डाल दूँ to just indicate user that this is student 1, so percentage D. ठीक है. So this is going to be student 1 percentage D I plus 1. So हर बार student यूजर को पता चलेगा that this is student 1, then दूसरी बार आएगा तो student 2, तीसरी बार आएगा तो student 3 and so on, right? So at this place we say student 1, और उसके लिए हम जैसे ही डेटा लेने जाएंगे then inner loop हम चेंज कर देंगे j को. j equals to 0, j less than number of subjects, so 4, so j less than 4, j plus plus. So ये हो गया inner loop. So at this place subject 1 obtained marks, subject 2 obtained marks, so subject के लिए हमने ले लिया है j, so we will print j plus 1 here. And now this marks obtained is a 2-dimensional array. तो यहाँ पे हमें 2 इंडेक्स देनी होंगी, i and j, और i और jth वैल्यू को हम ऐड करते जाएंगे. अब कहाँ पे ऐड करेंगे, राइट? सो दिस टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स जो है वो सिंगल डायमेंशनल एरे है. रिमेंबर, ये सिंगल डायमेंशनल एरे है, तो इसके साथ एक इंडेक्स आनी चाहिए. अब वो कौन सी रहेगी, आई या जे? कैन एनीवन आइडेंटिफाई? टोटल ऑब्टेन्ड आई लिखूं या जे लिखूं? ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज आई फॉर. आई किस लिए है और जे किस लिए है, ये समझने की ट्राई करो. आई स्टूडेंट के लिए है और जे सब्जेक्ट के लिए है. तो ये टोटल ऑक्टेन किसके लिए होगा, स्टूडेंट के लिए या सब्जेक्ट के लिए? स्टिल मेनी ऑफ यू आर कंफ्यूज्ड. कुछ लोगों ने आई बोला, कुछ लोगों ने जे बोला. ओके, वेट, let me again explain. We have taken outer loop I, which is for student, and we have taken inner loop J, it is for subject. फिर से समझ लो, I student के लिए है और J subject के लिए. अब सिंपल क्वेश्चन करो खुद को, ये टोटल ऑब्टेन्ड किसका होगा, सब्जेक्ट का या स्टूडेंट का?
look, for subject we have marks obtained. सब्जेक्ट के तो मार्क्स हैं, टोटल किसका होगा? सारे सब्जेक्ट को मिला के टोटल स्टूडेंट का बनेगा, राइट? सारे सब्जेक्ट्स को मिला के आप जो टोटल कैलकुलेट करोगे, दैट टोटल विल बी फॉर स्टूडेंट. तो अब क्लियर है कि यहाँ पे आई आना चाहिए. सो दिस शुड बी टोटल ऑब्टेन्ड ऑफ आई. फिर से समझ लो, सब्जेक्ट के मार्क्स जो हैं वो हम मार्क्स ऑब्टेन में सेव करते हैं. अब ये सारे सब्जेक्ट के मार्क्स जो ऑब्टेन किए हैं उसका टोटल करेंगे, then we will have this total obtained. Now this total obtained will be for a single student, और student के लिए हमारे पास I है, so we'll take I here. So when you are running outer loop for the first time, this will be first student. जब outer loop दूसरी बार चलेगा तो ये दूसरा student रहेगा, और जब outer loop तीसरी बार चलेगा तो ये तीसरे student का total calculate हो जाएगा, and so on, right? So we have taken 3 student marks, 4 सब्जेक्ट के लिए मार्क्स ले लिए, उसका टोटल भी कर लिया. अब अगर टोटल भी हो गया है, हर एक स्टूडेंट के जैसे ही मार्क्स आपको मिल जाते हैं उसका परसेंटेज भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, हर एक स्टूडेंट का परसेंटेज. सो आउटर लूप जो है वो स्टूडेंट के लिए है, तो ये परसेंटेज कैलकुलेशन जो है मैं इसको उठा के यहाँ पे रखूंगा. रिमेंबर, इट इज नॉट विद इन द लूप ऑफ जे, इट इज ओनली इन द लूप ऑफ आई. अब फिर से आप देखोगे कि टोटल ऑब्टेन्ड आई है, हर एक स्टूडेंट का टोटल है, जिसको 100 से मल्टीप्लाई करके सब्जेक्ट टोटल से डिवाइड करूंगा तो आईएथ स्टूडेंट का परसेंटेज मिलेगा, लाइक दिस वे. ओके, आईएथ स्टूडेंट का टोटल और आईएथ स्टूडेंट का परसेंटेज. Okay, so this is just a percentage calculation, and again percentage was a single dimensional array, that's why we needed one index at this place. Fine, so this is just the percentage calculation. So हमने 3 स्टूडेंट के लिए 4 सब्जेक्ट के मार्क्स गेट करके टोटल किया, और टोटल के साथ हमने कैलकुलेशन किया परसेंटेज, एंड हर बार वो टोटल और परसेंटेज भी एक एरे के अंदर स्टोर हो जाएगा. सो एवरीथिंग दैट वी कैलकुलेट वी आर गोइंग टू स्टोर इट इन अ मेमोरी. सो लेटर ऑन जब हमें वो प्रिंट करना है तो हम उसे प्रिंट कर पाएंगे. सो वी आर डन विथ ऑल द कैलकुलेशंस एट दिस प्लेस नाउ. तो हम अब प्रिंटिंग में जा सकते हैं. Now Viraj is asking what is this green line? Well, this is nothing but multiple equals to. Okay, यहाँ पे मैंने और कुछ नहीं किया, ये सारे equals to हैं, लेकिन because of my font ligatures, ठीक है, मैंने font ligatures on किया है, that's why ये सारे equals to एक साथ मिलके मुझे डबल लाइन दे रहे हैं. Otherwise it is nothing but equals to sign. आप अपने प्रोग्राम में मल्टीपल इक्वल्स टू लिखोगे तो वो अलग अलग दिखेंगे, जस्ट लाइक दिस वन. आप आउटपुट में चेक कर सकते हो, इट इज नथिंग बट इक्वल्स टू साइन. ओके, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बिकॉज आई यूज सम डिफरेंट फॉन्ट, बिकॉज ऑफ फॉन्ट आपको ये थोड़ा अलग दिख रहा है, एम्परसेंड साइन और ये इक्वल्स टू. Now again let me tell you, it is just a font. डबल इक्वल्स टू करूंगा तो वो जॉइंट हो जाते हैं, अगर मैं ट्रिपल इक्वल्स टू करूंगा तो वो 3 लाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे. इफ आई गो फॉर लेस देन इक्वल्स टू साइन तो ये फॉन्ट चेंज हो जा रहे हैं. दैट इज बिकॉज ऑफ माई एडिटर सेटिंग. मैंने अपने VS कोड एडिटर में ये सेटिंग किए हुए हैं, फॉन्ट लिगेचर्स ऑन किया हुआ है. दिस विल नॉट हैपन इन योर code, your editor, and that was one reason I was not using VS Code earlier. But let it be now. So this is nothing but equals to sign. Okay,
Yeah, so back to this one. So we have all the things calculated. अब 2 डायमेंशन से हमने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया. अब हम जाते हैं प्रिंट करने. So what we do here is heading will be common. अगर टेबल प्रिंट करना है तो ये हेडिंग पार्ट तो एक ही रहेगा. So no change in this much part. जब आप प्रिंट करते हो, right? Now this printing part is going to generate one row and it is student 1, student 2, student 3 and so on. So यहाँ पे आप क्या करोगे, आप इसको मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करने जाओगे, क्योंकि ये मार्क्स ऑब्टेन जो है, जो आप यहाँ पे प्रिंट कर रहे हो, it is not a single dimension, now it is 2 dimension, right? मार्क्स ऑब्टेन जो 4 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं वो अब सिंगल डायमेंशन में नहीं है, वो डबल डायमेंशन है. अब ये टोटल ऑब्टेन और परसेंटेज जो है वो सिंगल वेरिएबल नहीं है, इट इज अगेन एरे, एंड वी नीड टू इटरेट दिस एंटायर प्रोसेस. अब मार्क्स ऑब्टेन जो सिंगल डायमेंशन एरे था पहले, उसको हमने 0, 1, 2 और 3 इंडेक्स देके 4 वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है. लेकिन एक और डायमेंशन अब हमें यहाँ पे देना होगा. तो जस्ट डिफाइन नंबर ऑफ स्टूडेंट, और ये जो स्टूडेंट 1 है उसको भी मुझे 1 2 3 4 प्रिंट करना होगा. सो परसेंटेज डी. सो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल भी चाहिए यहाँ पे, लेट इट बी आई. सो मैं बोलूँगा स्टूडेंट 1 जो मुझे मिलेगा आई से. देन ये 4 सब्जेक्ट के मार्क्स मुझे मिलेंगे मार्क्स ऑब्टेन से, ओके. देन टोटल और परसेंटेज भी मिलेगा मुझे ये एरे से. सो यहाँ पे भी मुझे एक और इंडेक्स देना पड़ेगा. So what we are doing is we are actually printing this for ith student. तो यहाँ पे ith student का पहले सब्जेक्ट का मार्क्स, ith student का दूसरे सब्जेक्ट का मार्क्स, ith student का तीसरे सब्जेक्ट का मार्क्स उठा लो, ith student का चौथे सब्जेक्ट का मार्क्स उठा लो, ith student का टोटल और ith student का परसेंटेज. This is how we can print it. अब I कहाँ से आएगा? We need to iterate it, right? So that's why we will go for a for loop. And ये जो printing statement है उसको हम for loop के अंदर डाल देंगे. So I equals to 0, I less than कितने स्टूडेंट हैं? 3 and I plus plus. अब यहाँ पे प्रिंट होगा स्टूडेंट 0, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2. 0 1 2, उसको अगर 1 2 3 बनाना चाहते हो तो सिर्फ यहाँ पे I plus 1, that's it. Do not make it in index. एरे की इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, ये याद रखना है, ठीक है. एरे इंडेक्स विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0. तो इंडेक्स के अंदर जब तक आपको नहीं चाहिए आप उसको +1 नहीं करोगे, लेट इट बी आई ओनली. जब आपको 1 से प्रिंट करना है तभी I plus 1 करोगे. सो दैट्स ऑल. ये हो गया हमारा प्रिंटिंग पार्ट. एनी क्वेरी और क्वेश्चन? इफ यू वांट आप इसको भी लूप में लिख सकते हो. 4 सब्जेक्ट के मार्क्स जो हम प्रिंट कर रहे हैं उसके लिए भी अगर आपको लूप बनाना है तो बना सकते हो, ओके. लेट अस रन दिस कोड वंस. सो let me clear this command prompt and then let me run it. Oh, we have made some mistakes. Let us see where. Okay, so it says marks obt I, undefined identifier I, use of I. Why? I've taken it I equals to 0. I've declared that I. कभी कभी सेव होने में प्रॉब्लम होता है. let me run it again. Yeah, it runs. right. So कभी कभी ये सेव होने में प्रॉब्लम करता है. So fine, please enter
4 subject total marks. So let me go for 100, 100. Oh, 10 हो गया. Let us go for 10 only. And obtain marks 8. अब ये हो गया स्टूडेंट 1 के लिए. ये क्या बोल रहा है? प्लीज एंटर मार्क्स फॉर 4 सब्जेक्ट्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स. और यहाँ पे पहले आ गया स्टूडेंट 1. अब स्टूडेंट 1 ने सब्जेक्ट 1 में कितने मार्क्स लिए? सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4. ठीक है. देन इट टेल्स मी स्टूडेंट 2. अब ये दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स मांग रहा है. सो लेट इट बी 7. Again it asks me for student 3 and let it be 6. ये हो गया student 1 के marks. Then we have gone for student 2 marks and then we have gone for student 3 marks. Now when I press enter, it is going to give me the result. अब एक slash n लगाना पड़ेगा. Where? Let us see. So ये table heading perfect है. Then we have this student 1 8888 टोटल हो गया 32 और 80%. अब जैसे ही स्टूडेंट 1 का सब कुछ खत्म होता है उसके बाद हमें एक स्लैश n देना पड़ेगा. सो ये स्टूडेंट 2 जो है वो न्यू लाइन में आ जाए. 7777 28 और 70%. एंड देन स्टूडेंट 3 के लिए 6666 24 एंड 60%. सो ओनली वन स्लैश n रिक्वायर्ड हियर. एंड दैट विल बी आफ्टर वी प्रिंट एवरीथिंग एट हियर. जब मैंने सब कुछ प्रिंट कर लिया एक स्टूडेंट का, आई एम गोइंग टू मेक अ न्यू लाइन और यहाँ से एक न्यू लाइन निकाल दूंगा. ओके, सो लेट मी रन दिस कोड अगेन एंड शो यू द आउटपुट नाउ. सो आई गो फॉर 10 10 10 10 and 8 7 6 and we have that table here, right? So now we have gone for 2-dimensional array example. ये जो सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, 4 सब्जेक्ट के जो हमने मार्क्स लिए टोटल 3 स्टूडेंट के लिए. सो टोटल 12 values that we have taken, we store those 12 values in 2-dimensional array. Alongside we have this total array which is single dimension. We have this percentage array also a single dimension. तो यहाँ पे आपका 3 रो 4 कॉलम का एक मैट्रिक्स बन गया. यहाँ पे आपका 3 रो सिंगल कॉलम मतलब एक सिंगल डायमेंशन का एरे बन गया, राइट? एंड दिस इज आल्सो सिंगल डायमेंशन एरे. Yeah, well, it will work if we go for 8. Yashraj is asking what will happen if we go for 8.5 marks. Let me run your code again. सब्जेक्ट के मार्क्स तो 10 ही हैं मान लो, तो 101 हो गया. Let me run it again. Okay, so sorry, I'm going to run this code and now, yeah, so subject 1 10 2 10 10 and 10. Now Yashraj was asking what if we enter different floating point marks. Let's say student 1 के लिए 8.5 marks, 7.5 marks, 9 and 7. ये स्टूडेंट 1 के मार्क्स हो गए. स्टूडेंट 2 के 8.5 8 8 8 और स्टूडेंट 3 के लिए मान लो 7 8 6 6.5. कोई भी मार्क्स दे सकते हो. नाउ व्हेन वी टेक दीज वैल्यूज इन फ्लोट, it is going to store those values in float, right? So as you can see, it 8.5 7.5 9 and 7 total makes it 32, right? Now 8.5 8 8 8 makes it 32.5 and percentage will also be calculated appropriately, right? So these things are float. And okay, Ajay is asking, source the variable declaration. So this is where we declare those variables, right?
have a look at these things once and try to understand all the code. Okay, any questions now? Now let us go back to this one. And what if we still want to scale this one? इससे भी हम और बड़ा चाहते हैं. What if? अभी के लिए हमने क्या किया? We have gone for total 4 subjects. एक स्टूडेंट के लिए ले लिया, ठीक है. एक से ज्यादा स्टूडेंट के लिए ले लिया, ओके. What if I say that मुझे हर एक सब्जेक्ट के थियरी और प्रैक्टिकल मार्क्स अलग चाहिए? Let us try to understand that thing again. एक स्टूडेंट जो है वो सब्जेक्ट 1 के अंदर थियरी और प्रैक्टिकल 2 मार्क्स एंटर करने होंगे. देन सब्जेक्ट 2 के लिए भी थियरी और प्रैक्टिकल. सब्जेक्ट 3 के लिए भी थियरी और प्रैक्टिकल. इसका मतलब क्या हो गया? आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं, राइट? You have 3 subjects and each subject is having theory and practical marks. Theory and practical marks, right? So this structure is for one student. एक स्टूडेंट के लिए मुझे इतना चाहिए होगा, 2 डायमेंशनल एरे. अगर मुझे ये स्टूडेंट बढ़ाने हो, देन आई नीड टू गो फॉर थर्ड डायमेंशन. ये हो गया मेरा पहला स्टूडेंट, स्टूडेंट 1. अब दूसरा डायमेंशन जब मैं लूंगा तो वो हो जाएगा मेरा स्टूडेंट 2, क्योंकि सेकंड स्टूडेंट के लिए भी सेम स्ट्रक्चर चाहिए होगा मुझे, राइट? बिकॉज व्हेन आई से स्टूडेंट 1 के लिए 3 सब्जेक्ट और थियरी प्रैक्टिकल मार्क्स, सेम वे फॉर स्टूडेंट 2 के लिए भी मुझे सेम स्ट्रक्चर चाहिए होगा, अगेन थियरी प्रैक्टिकल मार्क्स फॉर 3 स्टूडेंट्स, 3 सब्जेक्ट्स. अब स्टूडेंट 3 के लिए भी मुझे सेम स्ट्रक्चर चाहिए होगा, फिर से थियरी प्रैक्टिकल मार्क्स एंड सो ऑन, राइट? तो एक डायमेंशन ये हो गया, एंड विद इन दैट everywhere we require 2 more dimensions table, so that goes for 3 dimensions. अगर आप मार्क्स को भी डिवाइड करते हो थियरी और प्रैक्टिकल में, देन एक और डायमेंशन आपका बढ़ जाएगा. So how you can think of it is, just have a look at this cube. So what you do is you will say that okay, we want marks obtained for how many students? 3 students. अब 3 स्टूडेंट के कितने सब्जेक्ट्स हैं? 4 सब्जेक्ट. और हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स कितने कैटेगरी में डिवाइड होते हैं? थियरी और प्रैक्टिकल 2 कैटेगरीज में. So this is how you can think of a 3-dimensional array, right? तो फिर टोटल ऑप्टेन जो है
वो क्या रहेगा? अब ठीक है, हमारे पास 3 स्टूडेंट हैं, 3 स्टूडेंट के टोटल तो यही रहेंगे, लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल सब्जेक्ट टोटल ऑप्टेन आ जाएगा। सब्जेक्ट टोटल ऑप्टेन मार्क्स आ जाएगा। अब वो क्या होगा? 3 स्टूडेंट के 4 सब्जेक्ट जो हैं उसमें थियरी और प्रैक्टिकल का जो टोटल होगा वो आप यहाँ पे स्टोर कर सकोगे इफ यू वांट। अगर नहीं करना है देन फॉरगेट दिस थिंग। लेकिन हर एक सब्जेक्ट का टोटल भी आपको चाहिए, क्योंकि देखो टोटल ऑप्टेन जो था वो तो स्टूडेंट का था। स्टूडेंट को 4 सब्जेक्ट मिला के टोटल कितना हुआ वो हमें यहाँ से मिलेगा, लेकिन हर एक स्टूडेंट को पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर टोटल क्या है वो भी अगर आपको चाहिए बेस्ड ऑन थियोरी एंड प्रैक्टिकल टोटल, तो ये टोटल आप कहीं ना कहीं स्टोर करना चाहोगे। एंड फॉर दैट यू विल रिक्वायर वन मोर एरे। अगर वो एरे चाहिए तो उसका डायमेंशन क्या होगा दैट यू नीड टू डिसाइड। सो ये टोटल जो है ये टोटल स्टूडेंट का नहीं है, ये टोटल सब्जेक्ट का है। ठीक है, ये टोटल जो है वो सब्जेक्ट का है, और ये वाला टोटल जो था, राइट, दिस टोटल इज फॉर स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के लिए अप टू स्टूडेंट डायमेंशन रखने की ज़रूरत पड़ेगी, एंड फॉर सब्जेक्ट अप टू सब्जेक्ट आपको डायमेंशन रखने की ज़रूरत पड़ेगी। So that's how you can think of another variable at this place. Let us also do this thing. मान लो कि 4 सब्जेक्ट को मैं कम करके 3 सब्जेक्ट कर देता हूँ, लेकिन हर 3 यानी ओके ओके लेट्स हैव 3 सब्जेक्ट्स, और 3 सब्जेक्ट के अंदर 2 कैटेगरी डिवाइड कर देते हैं, थियोरी और प्रैक्टिकल। ओके, so let us quickly go and do some changes in the same program. अगर इसी प्रोग्राम को मैं सब्जेक्ट जितने भी हैं वो सब्जेक्ट्स को थियोरी प्रैक्टिकल में डिवाइड करना चाहता हूँ। ओके, सो व्हाट आई रिक्वायर इज, ये जो ऑप्टेन मार्क्स ऑप्टेन जो है उसमें थियोरी और प्रैक्टिकल एक एक्स्ट्रा डायमेंशन डालना पड़ेगा। नाउ दिस विल आल्सो, आप ये भी समझ सकते हो कि एक्स्ट्रा डायमेंशन आपने किस साइड सोचा, राइट? सब्जेक्ट के ऊपर स्टूडेंट सोचा था तो हमने वो डायमेंशन लेफ्ट साइड डाला, लेकिन सब्जेक्ट के अंदर हमने पार्ट्स सोचे हैं तो ये एक्स्ट्रा डायमेंशन मैं राइट साइड लिखूंगा। इस तरह से भी आप थोड़ा बहुत समझ सकते हो। अगर इसमें स्टूडेंट के ऊपर मैंने क्लास वाला डायमेंशन बनाया होता तो वो डायमेंशन मैं यहाँ पे ऐड करता। ओके, सो यू नीड टू यू नीड टू थिंक द प्रॉपर हायरार्ची। क्लास के अंदर स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के लिए थियोरी प्रैक्टिकल कैटेगरी। सो अगर ये हायरार्ची भी आप अच्छे से समझ लो तो आप ये डायमेंशंस भी डिसाइड कर पाओगे। ठीक है, सो वी हैड गॉन फॉर मार्क्स ऑब्टेन्ड, देन टोटल स्टूडेंट के लिए रहेंगे, परसेंटेज भी स्टूडेंट के लिए रहेगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा वेरिएबल हमें यहाँ पे चाहिए, एंड दैट्स गोइंग टू बी सब्जेक्ट टोटल ऑब्टेन्ड। 3 स्टूडेंट ने 4 सब्जेक्ट के अंदर कितना टोटल गेट किया, तो ये हो गया मेरा एक्स्ट्रा वेरिएबल का डिक्लेरेशन। ठीक है, नाउ लेट अस गो एंड मेक सम चेंजेस हियर। अब यहाँ पे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, देयर आर ओनली 4 सब्जेक्ट्स। अगर आप चाहते हो कि हर एक सब्जेक्ट जो है उसके थियोरी मार्क्स कितने, प्रैक्टिकल मार्क्स कितने, वो अलग करने हैं, कैन बी। और लेट अस डिक्रीज, मैं ये 4 सब्जेक्ट से 3 सब्जेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि वरना मुझे एंट्री बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, राइट? सो लेट अस मेक दैट चेंज। 3 सब्जेक्ट, और 3 सब्जेक्ट के अंदर थियोरी और प्रैक्टिकल, सो 2 कैटेगरी हो गई, तो फिर सब्जेक्ट टोटल भी होना चाहिए। तो ये जो सब्जेक्ट टोटल है, ओके, ये सब्जेक्ट टोटल को कुछ और बोल देते हैं, और या तो फिर सब्जेक्ट टोटल ऐसे ही रखो, यहाँ पे हम सब सब्जेक्ट मार्क्स
टोटल ले लेते हैं, एंड दैट्स गोना बी 3 सब्जेक्ट के लिए 3 टोटल। सो ये हो गया थियोरी प्रैक्टिकल का अलग अलग मार्क 3 सब्जेक्ट का, और थियोरी प्रैक्टिकल को मिला के जो टोटल होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, और तीनों सब्जेक्ट का मिला के जो टोटल होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। सो दैट्स हाउ वी क्रिएट दैट हायरार्ची। नाउ लेट्स गेट दोज वैल्यूज। सो यहाँ पे हम जाएंगे, प्लीज एंटर सब्जेक्ट टोटल मार्क्स 4 सब्जेक्ट्स के लिए नहीं, लेकिन अब बोल दूं कि 3 सब्जेक्ट। प्लीज एंटर सब्जेक्ट थियोरी एंड प्रैक्टिकल मार्क्स फॉर 3 सब्जेक्ट्स। तो फिर यहाँ पे जाके भाई 3 सब्जेक्ट के लिए मैं सब्जेक्ट 1 जो है, ओके, उसके लिए प्रिंट एफ, let me have theory marks, theory, and this is going to be 0th इंडेक्स, ith सब्जेक्ट का 0th इंडेक्स, पहला कॉलम जो है वो थियोरी के लिए रखूंगा, एंड द सेम वे आई एम गोइंग टू हैव प्रैक्टिकल हियर, theory and practical, and that's going to be in the second index 1. So ith सब्जेक्ट का थियोरी मार्क्स, ith सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल मार्क्स। अब यहाँ पे 0 and 1 दो ही है, तो मैं 2 बार लिख सकता हूँ। अगर 2 से ज़्यादा है तो आप नेस्टेड लूप ले सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। अब ये दोनों मार्क्स मिल गए तो हम क्या करेंगे, सो सब्जेक्ट मार्क्स ऑफ I 0 एंड सब्जेक्ट मार्क्स ऑफ I 1। सो ये थियोरी मार्क्स और ये प्रैक्टिकल मार्क्स का टोटल करके मैं कहाँ पे डालूंगा, आई एम गोइंग टू डू इट इन दिस वन। सो सबसे पहले थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों के मार्क्स मिला के आप कहाँ पे डाल दोगे, यहाँ पे सब्जेक्ट के जो टोटल मार्क है उसमें। अब उसको प्लस इक्वल्स टू करने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों मार्क्स अलग अलग हैं, दोनों का एडिशन कर दिया, एंड देन you have to calculate this total, subject total also. So that's going to be plus equals to subject का जो total मिला वो ऐड करते जाओ। So this is how you can have that thing। ये पूरा subject का initialization हो गया आपका। Ready? Then let me complete this, and what I'll do is I'll upload this code in your e-content, so later on also you can understand this thing। सो ये हो गया सब्जेक्ट का इनिशियलाइजेशन। अब हम जाते हैं सारे स्टूडेंट के मार्क्स गेट करने के लिए। सो प्लीज एंटर मार्क्स फॉर 3 सब्जेक्ट्स थियोरी एंड प्रैक्टिकल ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स। तो आउटर लूप स्टूडेंट के लिए, आई जो है वो स्टूडेंट के लिए, तो ये हो गया स्टूडेंट 1। उसके अंदर जेथ लूप सब्जेक्ट के लिए, तो ये हो गया सब्जेक्ट 1 ऑब्टेन मार्क्स। और सब्जेक्ट के अंदर आप एक मार्क गेट नहीं करोगे, यहाँ पे आप क्या करोगे, थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों के मार्क्स अलग अलग गेट करोगे। सो यहाँ पे अगेन आप प्रिंट कर लो स्टूडेंट 1 ऑब्टेन मार्क्स, न्यू लाइन थियोरी, और यहाँ पे आप थियोरी के मार्क्स ले लो IJ 0, एंड सेम वे आप क्या करोगे, आप प्रैक्टिकल के मार्क्स गेट करोगे। सो थियोरी 0th इंडेक्स पे, प्रैक्टिकल 1 इंडेक्स पे, ये थर्ड डायमेंशन आ गया हमारा। 0 ith स्टूडेंट, jth सब्जेक्ट थियोरी मार्क, ith स्टूडेंट, jth सब्जेक्ट प्रैक्टिकल मार्क। अब ये दोनों का हमें टोटल करना होगा, लाइक वी हैव मार्क्स ऑब्टेन एंड वी नीड टू कैलकुलेट दिस थिंग आल्सो, राइट। सब्जेक्ट टोटल ऑब्टेन हमें वो कैलकुलेट करना है, वो क्या होगा, ith स्टूडेंट के लिए jth सब्जेक्ट का टोटल, और वो डिपेंड करेगा ये दोनों वैल्यू पे, दिस प्लस
दिस थियरी और प्रैक्टिकल के मार्क्स मिला के आपको सब्जेक्ट का टोटल मिल गया। देन ये सब्जेक्ट का टोटल जो है वो आप डालते जाओगे टोटल ऑप्टेन में, राइट। सब्जेक्ट का टोटल जो है वो आपका चला जाएगा टोटल ऑप्टेन में। एंड देन व्हेन यू आर डन विथ वन स्टूडेंट तो आप उसका परसेंटेज भी कैलकुलेट कर पाओगे। सो वो ऐसे ही रहेगा। डन। So we are done with getting all the values. Now let us have this table structure properly. Subject 1 theory, then subject 1 practical, then आ गया subject 2 theory, subject 2 practical, और हमने 3 सब्जेक्ट लिए, राइट। आई बिलीव यहाँ पे भी हमें 3 करना पड़ेगा, राइट। 3 subjects, 3 students, 3 subjects, 3 subjects. Okay, so need to go for one more subject 3 theory and subject 3 practical, and then total and percentage. Need to increase few more equals to signs also. Okay, just this is just a printing purpose, just format बनाने के लिए. You need not to go for this always. And before we complete this session, I also want to complete this program. So yeah, so we have now more than the previous tables. पहले जितनी भी कॉलम्स थी उससे ज़्यादा है। सब्जेक्ट 1 के थियोरी प्रैक्टिकल, सब्जेक्ट 2 थियोरी प्रैक्टिकल, सब्जेक्ट 3 थियोरी प्रैक्टिकल एंड सो ऑन। अब ith स्टूडेंट के मार्क्स में प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन अब इतना सारा जाने के बजाय मैं क्या कर सकता हूँ, मैं और एक लूप लिख सकता हूँ यहाँ पे इफ़ आई वांट। सो पहले बोल दूंगा ठीक है, स्टूडेंट 1, ओके, स्टूडेंट 1 करके ख़त्म कर दिया, एंड मैंने सिर्फ स्टूडेंट 1 प्रिंट किया यहाँ पे। सो इतना मैंने ऑलरेडी प्रिंट कर दिया, और वो हम यहाँ से निकाल देते हैं। अब ये इतना बाकी है। नाउ हियर आई विल गो फॉर अ लूप, 3 बार लूप चलाऊंगा जो मुझे ये 3 सब्जेक्ट के थियोरी प्रैक्टिकल मार्क्स दे दे। सो वेरी क्विकली आई विल गो एंड हैव अ फॉर लूप हियर फॉर j equals to 0, j less than 3, j plus plus, and within that I'm going to have this printf which will give me theory practical marks। तो ये पहला हो गया theory, दूसरा हो गया practical, तो मुझे इतने प्रिंट करने हैं यहाँ पे। I want to print 2 values here, और वो 2 वैल्यू किस तरह से होगी, मार्क्स ऑब्टेन ij0 और ij1। थियरी मार्क्स मुझे मिल जाएंगे ij0 से, प्रैक्टिकल मार्क्स मुझे मिल जाएंगे ij1 से। तो ये लूप हो गया मेरा थियोरी प्रैक्टिकल मार्क्स प्रिंट करने के लिए। तो 2 वैल्यू मैंने ऑलरेडी ये प्रिंट कर दी। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे टोटल और परसेंटेज चाहिए सिर्फ। सो आई कैन हैव दोज टोटल एंड परसेंटेज लाइक दिस वे, एंड आई जस्ट नीड टू गो फॉर 2 वैल्यूज नाउ। बाकी के ये निकाल दो। सो स्टूडेंट 1 theory practical marks, total and percentage marks, and done. So let us save and let's try to run this code now. So it is asking subject 1 theory. So मान लो कि 7 and 3, 70 marks theory, 30 marks practical. So I'll go for 70 30, हर एक सब्जेक्ट के लिए 70 30 ले लिया, so total will be 10, 100%.
अब यहाँ पे अब स्टूडेंट 1 सब्जेक्ट 1 थियरी मार्क्स डालो। सो थियरी में आ गया, मान लो कि 60 and 20, so 6 and 2। दूसरे स्टूडेंट के लिए मान लो कि 5 and 2, और तीसरे स्टूडेंट को मिल गया लेट्स से 100%, 7 and 3, and this is your entire table. So calculation is proper. Just have a look at 6 2, okay, 60% and 20% theory and practical हर एक सब्जेक्ट में, तो वो हो गया टोटल एंड 80%, 5 2 70%, and if I go for full marks 70 30, 7 and 3, then it goes for 100%, and this is our result. Yeah, so in this example we have started with 1D array, उसको अगर ज़रूरत पड़ी तो हमने स्केल किया with multiple students 2D array, and again if you need सब्जेक्ट के पार्ट्स करने हैं तो या तो फिर एक क्लास से ज़्यादा क्लास में जाना है, तो मल्टीपल क्लासेस में जाना है, देन you will require 3-dimensional array, and that's what we have seen here. So that's all. Thank you guys for being part of this session here, and we have seen number of examples for arrays. I'll also upload this code in eContent, so you can take this as a reference. Okay, thank you everyone. See you in the next lecture now.